Hello students, today I will start the 12th class physics and our first topic is electromagnetism. So what is the electromagnetism? Electromagnetism is nothing but the study of electricity and magnetism. So this is the definition of the electromagnetism, and electromagnetism is divided in two branches. First one is electrostatic and second one is electrodynamics. And the electro word is the Greek word electro, which means charge. Electro word is the Greek word which means charge. So there is now name suggests itself that this electrostatic word is made from the two words, that is electro plus static. So that means electro means charge and static means in rest. So the name suggests that the charge in its rest. It is the study of charge when it is in rest. So electrostatic is the study of charges when it is at rest. So we'll write that the study of charge at rest. And what is the electrodynamics? This is the study of charges in motion. So what are the chapters that we will cover in this branch electromagnetism? I will just mention it. The first chapter is known as the Coulomb's law. Coulomb's law. Second one is electric potential. Third, capacitor. So these three chapters we will cover in the electrostatic, and in the electrodynamics the first chapter is current electricity. Second one is magnetism. Third one is electromagnetic induction. So in short I am writing EMI, that means electromagnetic induction. Fourth one is alternating current, and fifth one is electromagnetic wave. तो यहाँ पे ये 5 चैप्टर्स हैं जो हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कवर करेंगे, और इन पांचों चैप्टर में जो सबसे मेन कैरेक्टर मैं कहूँ जिसका है वो कौन है, वो ये चार्ज है. तो सबसे पहले हम लोग चार्ज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, और वो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में जो रखा जाता है तो किस तरह से रिएक्ट करता है, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन पहले करेंगे. सो लेट्स बिगिन टू डिस्कस अबाउट द चार्ज. So what is the charge? Charge is a very intrinsic property of matter. So first I am writing the definition of the charge. The intrinsic property of matter. The intrinsic property associated with matter with matters due to which it shows
electric source as well as experience. So source and experience, electric and magnetic properties, electric and magnetic effects, you can say effects. And types of charges. So there are two types of charges. Two type. First one is positive charge and second one is negative charge. First one is the positive charge and second one is the negative charge. In further we will discuss what is the positive charge, what is the negative charge. तो अभी हम लोग यही लिख ले रहे हैं, बाद में हम इस पर डिस्कशन करेंगे जब मैं आपको चार्जिंग पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे किसी भी बॉडी पर कैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और कैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और अभी इसकी यूनिट और डेफिनेशन, इसका डायमेंशनल फार्मूला, इन सब पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज तो एमकेएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है कूलम, और इससे छोटी यूनिट सीजीएस सिस्टम में भी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, ईएसयू। ज़्यादातर यूज़ कूलम का ही होता है। ईएसयू में बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि चार्जेस की वैल्यू ईएसयू में दी हो। हमारे पास कन्वर्जन का तरीका भी है कि अगर ईएसयू में वैल्यू दी है तो हम लोग उसको कैसे कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयूज। और इसके साथ को अगर चार्जेस की वैल्यू किसी दूसरे फॉर्म में दी गई है, जैसे कि दिया हुआ आपको मिली कूलम या माइक्रो कूलम दिया है या नैनो कूलम दिया है, तो फिर हम उसको कूलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिली कूलम में 10⁻³ कूलम होता है, 1 माइक्रो कूलम में 10⁻6 कूलम और 1 नैनो कूलम में 10⁻9 कूलम होता है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरह से वैल्यू हो सकता है दिखी मिले कि जो वैल्यूज़ हैं वो मिली में है या माइक्रो में है या नैनो में है। तो इस तरह से हमारे पास ये तरीका है कि उनको हम लोग कूलम में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। तो हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कि ये फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, I इज इक्वल टू Q/T, Q इज इक्वल टू IT। एक चीज़ यहाँ पे और नोट करिएगा कि जो चार्ज है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आप लोगों ने पढ़ा है वो 7 ही होती हैं, तो उसमें चार्ज कहीं नहीं आता है। लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि जो चार्ज है वो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, जो कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उस सातों में ये भी आता है। दूसरा है टाइम। तो इसलिए हम इसका जब डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद से इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो यहाँ से करंट के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करते हैं A और टाइम के लिए T। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT।
अब डिस्कस करेंगे हम लोग कि चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, अब जानेंगे। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी जो होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर दीजिएगा यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि क्वेश्चन अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसकी प्रॉपर्टी में लिख दे रहा हूँ कि जो चार्ज होता है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो पूछा था कौन सी फील्ड वो प्रोड्यूस करता है। सो चार्ज इन रेस्ट ये कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है, इन यूनिफॉर्म मोशन, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मतलब कि कोई भी चार्ज को अगर हमने यहाँ पे सिंबल चार्ज का क्यू होता है, तो अगर कोई चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया है क्यू, तो अपने आसपास एक तरह की फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बाद में फिर से इस चैप्टर पे इस पर चर्चा होगी। और दूसरा ये होता है कि ये चार्ज अगर मूव करने लग जाए, मान लीजिए कि ये चार्ज इधर मूव करने लग गया, मान लीजिए किसी वायर में ऐसे किसी वायर में जो है वो चार्ज है, चार्ज में से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इधर मूव करने लग गया, तो जो करंट होती है वो इधर को फ्लो होने लगती है, करंट आई। और आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी वायर में अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो करंट क्या है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज मूव किया तो करंट फ्लो हुई, और करंट फ्लो होने की वजह से उसके करस्पॉन्डिंग उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जब मोशन में आता है, यूनिफॉर्म मोशन में, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता ही है, उसके साथ ही साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। और थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में ना हो, अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, तब वो कौन कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है वो तीन चीज़ों को इमिट करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी, और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले वेव होती क्या है, वेव क्या है, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स एनर्जी, एनर्जी को इमिट करता है, किस फॉर्म में, इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो मॉडल दिया हुआ है उसमें रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, फिर इन ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स, और यही वो गलती कर गए थे, उनका मॉडल फेल हुआ था इसी वजह से। बाद में नील बोर आए, उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, आप कह रहे हैं ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो भले उसकी स्पीड ना चेंज हो रही हो, लेकिन हर एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। मतलब कि अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी में तो दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी। तो भले वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज हुई, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल तो है ही,
कैसा चार्ज पार्टिकल है ये? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, इसलिए एनर्जी इमिट करेगा। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सेम पाथ पे घूमता रहे, क्योंकि उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती हुई जाएगी और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस की तरफ गिरता जाएगा ऐसे, और थोड़े टाइम बाद वो जाके न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पूरी तरह से वैनिश कर जाएगी। सो ये फॉल्ट आया था रदरफोर्ड के मॉडल में, जिसको कि नील बोर ने सही किया था। और ये जो दिया हुआ, ये जो मैंने लिखी है लाइन, ये लाइन जो है वो मैक्सवेल के द्वारा बताई गई है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये क्वेश्चंस इस पे आपको बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इस लाइन पे क्वेश्चन आप यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ इसी लाइन पे, क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन का एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस, यहां पे ऑप्शन आपको दे दिए जाए, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ electric field and magnetic field and none of these। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? अगर यहाँ पे लिखा होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होता, लेकिन यहाँ पे अगर रेस्ट में होता तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता, लेकिन वो यूनिफॉर्मली मोशन में है। सो इसलिए यहाँ पे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी चार्ज की है। आप लोग इसको जानते भी होंगे कि सेम चार्ज या लाइक चार्ज, मतलब एक ही तरह का अगर नेचर है उन चार्जेस का, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, रिपेल्स while unlike charges attract each other। मतलब अगर चार्जेस का नेचर सेम है, दो ही प्रकार का नेचर चार्ज का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो अगर उनका नेचर सेम है, मतलब दो के दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर दो के दोनों निगेटिव हैं तब भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर उनका नेचर अपोजिट है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसकी दोनों दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्ज होता है ये विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मास। कहीं भी अगर चार्ज है तो उसके साथ मास जरूर जुड़ा रहेगा, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल, इसका उल्टा जरूरी नहीं सही हो। मतलब हम लोग कहते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट without mass while mass can exist without charge। सो इसकी ये दूसरी प्रॉपर्टी है। Fourth property is a scalar quantity।
scalar quantity. Scalar quantity means it has no direction and it can be added or subtracted by the ordinary algebra. That is, it can be added or subtracted by ordinary algebra. जैसे कि किसी भी बॉडी पे यहाँ पे कुछ चार्ज है, मान लीजिए कि Q1 चार्ज इसको दिया हुआ है, प्लस Q1 चार्ज हमने इधर से दिया इसको, इधर से हमने इसको प्लस Q2 चार्ज दे दिया, इधर से हमने इसको प्लस Q3 चार्ज दे दिया, इधर से हमने इसको नेगेटिव में चार्ज दे दिया, माइनस Q4 चार्ज दे दिया, माइनस Q4 कूलाम का। तो आपसे पूछा था कि इस पर नेट चार्ज कितना आएगा। तो नेट चार्ज बताने के लिए आपको बस सिंपल सी मैथमेटिक्स करनी है, इनको जैसे है वैसे साइन के साथ इनको ऐड कर देना है। आप लिखोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस माइनस Q4, दैट मीन्स माइनस Q4। तो इस पर नेट चार्ज आ जाएगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको जोड़ना या घटाना इतना आसान है। अगर ये वेक्टर होती तो इसके लिए हमको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करना पड़ता। फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज ट्रांसफर होने वाली चीज है, मतलब चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो सकती है, मतलब चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज ट्रांसफर हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए इस पे प्लस Q चार्ज या कोई भी चार्ज इस पे हमने दिया है, ये कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है जो कि अभी अनचार्ज्ड है। ये चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, और ये दूसरा ये अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है ये भी। अगर इन दोनों को हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम लोग कांटेक्ट में रख दिए, ये मैंने इनका कांटेक्ट में रख दिया, तो क्या होगा, चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि समझने के लिए मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। और क्या ये इक्वली ट्रांसफर होगा कि कैसे ट्रांसफर होगा, ये डिसाइड करता है, ये पूरा डिपेंड करता है उनकी ज्योमेट्री पे। आगे इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। जब मैं आप लोगों को चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा तो मैं चर्चा करूंगा कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। अभी आप ये जानिए कि चार्ज ट्रांसफरेबल है, मतलब चार्ज जो है वो अगर कंडक्टिंग बॉडीज़ दो हैं, एक पे चार्ज है दूसरे पे नहीं है, अगर उसको हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred। It can only be transferred। इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे कि यूरेनियम का जो एटम होता है, ये जब अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस भी उसको बोला जाता है, 2He4, इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो जब वो अल्फा पार्टिकल इमिट्स करता है तो जो प्रोडक्ट बचता है वो प्रोडक्ट कौन सा होता है, थोरियम। तो अगर आप यहाँ पे देखें इसको ध्यान से,
तो ये चीज़ जो होती है, ये चीज़, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इस साइड में देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो 92 है, और आप इस साइड में देखें, यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 90 + 2, 90 + 2 = 92। तो मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो हीलियम न्यूक्लियस हीलियम पार्टिकल है वो इमिट हुआ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके देख रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मतलब कि जो चार्ज है वो बैलेंस है पूरी तरह से।